तो ये दिस चैप्टर इज़ मोस्टली अबाउट मैग्नेटिज्म, मतलब नेचुरल मैग्नेटिज्म। तो उसका कुछ बेसिक, मतलब कहाँ से मैग्नेट वर्ड आया एंड मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज था, फैक्ट्स, वो हमने पढ़ा। ये सब वो वीडियो में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, बट आई जस्ट वांट टू नोट डाउन फ्यू इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स एंड फॉर्मूले so that we are up to date when we start with the numericals. बार मैग्नेट के बारे में हमने कुछ पढ़ा था. What is this circular coil around bar magnet? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? करंट कैरिंग कॉइल का ये नॉर्थ और साउथ पोल है, मतलब क्लॉक फेस रूल्स है. What is this IA is equal to ML? I is the current in the coil. What is A? Cross sectional area of the coil is equal to M. Magnetic pole strength. Magnetic pole strength multiplied by L, length of the actual length of the bar magnet, that is distance between two poles. ठीक है. Clock face rule के हिसाब से we can find out which is the north and which is the south pole of the bar of the coil or the bar magnet. Magnitude of magnetic field intensity due to monopole at a distance x from it. So this is the magnitude of magnetic field intensity. सबसे पहला फॉर्मूला, इसको नोट कर लो यार कहीं एक जगह पे, सो इजी होगा हमारे लिए. बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. और बी का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स m इंटू एक्स स्क्वायर. इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट. ठीक है. म्यू नॉट, ओनली म्यू नॉट, इट इज absolute, not relative. Absolute permeability of vacuum or free space. ठीक है. M magnetic pole strength, x is the distance, x is the distance of a point at which magnetic field intensity is to be measured. Distance of a point from pole. ठीक है. This is monopole. Okay, means a single pole. Generally single pole does not exist, but this is a simplified formula for a single pole. We'll talk about it. आएगा आगे.
तो ये सबसे पहला फॉर्मूला था चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद पी पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। यहाँ पे कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू 2Q टाइम्स L। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का फॉर्मूला है M इज इक्वल टू 2M इंटू एल। M इज इक्वल टू 2M इंटू एल, सेकेंड फॉर्मूला। मुझे ना हर एक पार्ट के बाद ऐसा फॉर्मूला शीट बनाना है, सो दैट विल डू टुगेदर एज अ रिविजन। हर एक पार्ट का मीन्स हार्डली इट विल टेक 10 to 15 minutes. So I'll also record it, so it will be kind of a revision for that whole part. So if there are 10 parts in one chapter, we have 10 videos of 10 minutes revision which will cover all the formulae, important formulae, terms, definition, SI unit, everything. So very quick guide for all of you to revise. प्लस तुम नोट भी कर लो तो तुम्हारी नोट्स बन जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा हम लोग करेंगे अभी थोड़ा रेगुलरली। अच्छा, सिंस वी हैव टाइम सो वी कैन यूटिलाइज इट लाइक दिस ना, क्योंकि उस दिन हम लोग ने यही एक्सपीरियंस किया when he was there that there are a lot of formulae. You were there in the previous class जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, there were many formulae. So हम लोग को कौन से सिचुएशन में क्या फॉर्मूला यूज करना है, at times we get confused, we tend to get confused. So that confusion should not be there. So whenever you start solving a numerical, you should first go through the formula sheet, then start numerical. ये एक हैबिट हम लोग डालेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसका सिंबल है वेक्टर m, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज 2m टाइम्स l। क्रॉस नहीं लिखता हूं, डॉट l लिखता हूं, 2m इंटू l, ठीक है। टू एम इंटू, सेम ही चीज है, ठीक है। सो m का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम साउथ पोल टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल, इनसाइड द मैग्नेट, विद इन द मैग्नेट, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, m is directed from south to north pole within the magnet। इसका डायरेक्शन हो गया। Magnetic dipole moment vector of a bar magnet is defined as magnetic pole strength multiplied by length of bar magnet. Recall that in the case of current carrying coil, the number of turns n carrying current I, the magnetic dipole moment is written as mu is equal to NIA. So this is one more formula for magnetic dipole moment, ठीक है। Another formula, this is formula number 1, this is formula number 2. Mu is equal to NIA, and this is for so there is a straight confusion here अगर तुम्हें नहीं पता है तो। so if you gone through this you know कि अगर कॉइल की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बार मैग्नेट के लिए ये है, दिस इज फॉर बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। Exactly. So n is the number of turns, I is the current, and A is the area of cross section. दो फॉर्मूले।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एक वेक्टर है, सो उसका डायरेक्शन कैसे पता लगाता है, ये भी लिख लो। डायरेक्शन इज फाउंड बाय राइट हैंड thumb rule by curling our fingers in the direction of current in the coil. ठीक है, there is no issue in finding the direction of magnetic dipole moment in case of a bar magnet because we know it is fixed from south to north. So if you know south and north pole, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Next is magnetic field due to a bar magnet at a point on its axis, जो हम बात कर रहे थे. मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है. सो अगर एक बार मैग्नेट है, उसके दोनों पोल्स की वजह से उसकी एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एनीवेल जनरल पे कहाँ में कितना होगा, तो वो लिस्ट कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, ये हमने पूरा डेरिवेशन देखा था लास्ट टाइम, और हमें एक्सिस पे मिला था म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई एक्स क्यूब, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, नॉट चार्ज, डाइपोल. ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई एक्स क्यूब. Magnetic field intensity at number 1 axial point, ठीक है, which is given by B axial is equal to mu naught by 4 pi into क्या था 2m by x cube, B axial. Number 2 equatorial point perpendicular bisector BEQ is equal to mu naught by 4 pi into m by x cube. m by x cube ही था ना, हाफ ही रहता है, m बाई एक्स क्यूब. अच्छा, ये दोनों केस में l की वैल्यू x से बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आएगा, नहीं तो ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है. ये फॉर्मूला अगर l बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लेना है तुम्हें. ठीक है, तो ये भी नोट कर लेते हैं, क्यों नहीं. म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2mx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर. रिमेंबर इट, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, रिमेंबर इट. ठीक है, और म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2mx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर if L is large. और म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम एक्स अपॉन 3/2 है, 3/2 है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेस टू 3/2 है. ऊपर हाँ, ऊपर तक का देख लेते हैं एक बार. हाँ, ऊपर x नहीं है, और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2 और ऊपर x नहीं है.
ऊपर x नहीं है और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2 इफ L is large। सही है। और थर्ड क्या था, जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट पे एक थीटा आता है। थीटा इज द एंगल मेड बाय द पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट, दिस थीटा। ठीक है, मतलब डायग्राम तो मैं थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बट दिस इज द फॉर्मूला। म्यू नॉट इंटू कैपिटल M अपॉन 4πx³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। म्यू नॉट M अपॉन 4πx³, म्यू नॉट M अपॉन 4πx³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन है दैट इज अल्फा in terms of theta. Alpha in terms of theta is tan alpha is equal to half tan theta. Tan alpha is equal to half tan theta. ठीक है, ये हो गया। और क्या, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, एक तो ये बार मैग्नेट का खुद का और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे डायपोल के साथ भी होता था, डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता था। ठीक है, तो इसका टॉर्क कैसे ढूंढेंगे? सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज mb इंटू 2l साइन थीटा और 2ml इंटू b साइन थीटा और कैपिटल M इंटू b साइन थीटा। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मतलब ये पूरा डेरिवेशन ही है। m स्मॉल m इंटू b इंटू 2l साइन थीटा, क्या लिखेंगे? टॉर्क ऑन अ बार magnet placed in an external magnetic field क्या हो जाएगा? कैसे लिखते हैं टॉर्क? ऐसे ना, टॉर्क इज इक्वल टू, नहीं, m स्मॉल m इंटू b इंटू 2ml साइन थीटा, नहीं 2l साइन थीटा। ठीक है, एम बी इंटू विच इज m कैपिटल M into b sin theta which is equal to m vector cross
B vector. So it's a cross product of M and B. Its direction is perpendicular to the plane containing M and B. M की direction होती है from south to north pole. B की direction along in the paper in the plane containing in the plane होती है, तो दोनों का direction हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं. Tau is equal to M cross B. Potential energy of bar magnet placed in uniform magnetic field So we generally consider this direct formula, that is minus mb sin theta, तो cos theta, I'm sorry, minus mb cos theta. ये वाला आई थिंक लिखना ज़रूरी है, ये दिस वन. ठीक है. आई डोंट नो इफ आई कैन टेक अ like directly copy it. I cannot do that. So u2 minus u1 is equal to mb cos theta 1 minus cos theta 2. u2 minus u1. क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल magnetic field. So u2 minus u1 is equal to क्या होगा? u2 minus u1 कैपिटल M mb ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. करेक्ट. और इसमें हम लोग लेते थे cos थीटा 1 को 90 लेते थे. मतलब तुम्हारा इनिशियल पॉइंट को हमेशा हम लोग 90 दैट इज इक्विलिब्रियम मान के चलते. ठीक है. हेयर वी टेक इनिशियल पोजीशन दैट इज थीटा 1 एज 90 डिग्री. देयरफॉर u क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा. थीटा क्या है? थीटा इज द एक्यूट एंगल बाय विच द मैग्नेट इज मूव्ड and shifted from its equilibrium position. So minus mb cos theta. So that much of energy you are storing into it. That's why its energy becomes negative. Minus mb cos theta. Minus mb cos theta और minus m dot b. Minus m vector dot b vector. Of course u energy है, स्केलर है. यहाँ से हमको आगे पढ़ना है ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो ये वाला फिगर में हमको दिख रहा है 2.8. नहीं, इसके बाद वाला फिगर. हाँ, यस, 2.8a. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? b, लेफ्ट टू राइट, राइट. व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द बार मैग्नेट? in the same direction as that of the external magnetic field. So here what is the value of theta? 0. अगर थीटा 0 है, so can you tell me what is the value of u? Yes, that is negative. Minus mb, that is maximum negative. Least energy is in this position. This is not zero energy position. This is the least energy position.
ठीक है, अ बार मैग्नेट प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब यही बार मैग्नेट को हमने क्या किया, वी हैव रोटेटेड इट बाय एन एंगल थीटा। रोटेटेड इट बाय एन एंगल थीटा मतलब उसके नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या होगा, देयर विल बी अ टॉर्क विच इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, बट ये जो टॉर्क है इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ हमेशा सेम होती है। ऑपोजिट क्यों, क्योंकि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल पे टॉर्क अलग डायरेक्शन में लगेगा, साउथ पोल पे अलग डायरेक्शन पे, और ये दोनों क्या है, ये दोनों कपल फोर्सेस की तरह एक्ट करेंगे। अब जब भी कोई मैग्नेट पिवोटेड है एट अ सेंटर, इफ यू बिलीव इट टू बी पिवोटेड एट अ सेंटर, और उस पर कपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो ये कपल क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये उसको रोटेट करवाएंगे। ठीक है, बट क्या होगा कि जो रोटेशन है इट विल बी टू एंड फ्रो, इट विल नॉट गो इन वन डायरेक्शन ओनली। डोंट यू थिंक सो? क्योंकि ये फोर्स नहीं, ये उसको ऐसे टर्न करेगा, ये इसको ऐसे टर्न करेगा, तो ये तो आई थिंक इट विल रोटेट इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, अलाइन करने की, फिर वो वापस आता है। जैसे ही ये ऊपर आ जाता है, मतलब इसकी पोजीशन ऐसे हो जाती है, ऐसे, दिस इज द न्यू पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या आ जाता है, साउथ पोल। अब ये जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन इफ यू सी, इट विल बी लाइक दिस। तो मतलब जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती है तो इसका रोटेशन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। सो magnet is shown to be placed parallel to the magnetic field. In this case, angle between the magnetic dipole moment and the magnetic field intensity is 0 degree. Hence, this is a case of stable equilibrium, not 90 degree as I said earlier. This is the case of stable equilibrium. This means that the net force as well as the net torque acting on the magnet remains 0. When the magnet is rotated by an angle theta, then it experiences torque that tends to rotate the bar magnet in the sense opposite to this rotation. In other words, it tries to restore the earlier orientation of the magnet to align the magnetic dipole along the direction of the external magnetic field. Hence, the torque is of restoring nature. Therefore, we can write the following: I into d square theta by dt square is equal to minus mb sine theta. What is minus mb sine theta? Torque. It is m cross b. Why it is minus? Because that torque is of restoring nature. It will bring the magnet into its equilibrium position against the force which you have applied to disturb it from its equilibrium position. I think so. I is not current over here. There is no current element. So has to be. What is this? D square theta by angular acceleration. Angular acceleration into I. Into I is moment of inertia. What is? Are you sure? एक मिनट, हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होता है इनर्शिया, दैट इज एंगुलर इनर्शिया। एंगुलर इनर्शिया या सिर्फ इनर्शिया। और एक्सेलरेशन इज डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, जिसकी जगह थीटा डाल दिया है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। यस, सो दैट इज द टॉर्क। Here I is the moment of inertia of the magnet about the moment of inertia of the magnet about the axis passing through its center and perpendicular to the length of the magnet. Here the negative sign is due to the restoring nature of the torque. Let alpha be the angular acceleration.
then d square theta by dt square is alpha. Hence we can write the angular acceleration as minus mb by I into sine theta. As we can see that the above equation does not satisfy the condition of SHM, but for a small angle theta we can approximate sine theta is equal to theta, which satisfy the conditions of SHM. Hence, for a small deflection of bar magnet in an external magnetic field, we can write alpha is equal to minus mb into theta by I. So we have got equation 25 in the form of alpha is equal to minus omega square theta, where omega is root of mb into I. Equation 26 describes the angular frequency of oscillation, to which the time period of oscillation relates as t is equal to 2 theta by omega. अभी ओमेगा की वैल्यू अगर डाल देंगे, so we get time period as 2 pi under root I by mb. So we should just know the I, that is inertia of the bar magnet. So कुछ चीज़ें यहाँ पे दी है. When magnetic dipole moment m and external magnetic field B are parallel to each other, that is theta is equal to 0 degree, the magnetic potential energy will be U is equal to minus mb cos theta or minus mb. मतलब सबसे कम एनर्जी इक्विलिब्रियम में होती है. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इज मिनिमम in this case, and the magnet is said to be in the stable equilibrium. If you slightly rotate the bar magnet from this state, then it starts oscillating due to restoring action of magnetic torque. Yes, but slight displacement चाहिए. When energy is lost in the form of heat, the bar magnet will again achieve state of equilibrium. When the magnetic dipole moment m and the external magnetic field B are anti-parallel, मतलब magnetic dipole moment m and B are anti-parallel, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसको यहाँ पे नॉर्थ बना दो और यहाँ पे साउथ बना दो, सो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे से. व्हाट विल बी द एनर्जी? U मैक्सिमम 1. यस, पॉजिटिव 1. ठीक है. सो mb, yes. The potential energy of the magnet is maximum in this case, and magnet is said to be in unstable equilibrium. As you slightly rotate the bar magnet from this orientation, then the magnetic torque further rotates it in the same sense, and the bar magnet does not return to its original state. After heat loss, it will stay in equilibrium with the magnetic moment parallel to the magnetic field. मतलब अगर इस पोजीशन से तुम स्लाइटली रोटेट करोगे तो वो वापस अनस्टेबल पोजीशन पे नहीं आएगा, मतलब नॉर्थ टू द लेफ्ट एंड साउथ टू द राइट नहीं होगा, वो वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही आएगा. मतलब देयर विल बी नो ऑसिलेशन. यस, देयर विल बी पे आने के बाद हो सकता है लिटिल बिट, हाँ वहाँ पे नहीं होगा. इट विल नॉट स्टे देयर. या सो दैट इज. और ये सारे तुम्हारे कंपैरिजन है बिटवीन इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज जो अभी तक पढ़े हैं तुमने, सारे के सारे एनर्जी टॉर्क सब आ गया. कंपैरिजन बिटवीन सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट, इसमें बीच में क्या कंपैरिजन है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड आर सिमिलर. When magnetic compass is moved in the vicinity of solenoid or bar magnet, the pattern of deflection around each of them is found to be similar. It is observed that when solenoid is cut into two parts, on passing current through each of them, they behave as small solenoids, having weaker magnetic fields. In a similar manner, when we break a bar magnet into two parts, they also behave like weaker magnets. So let us calculate the magnetic field intensity due to solenoid with radius r, length 2l, and n number of turns per unit length. Let the current carrying by the solenoid be small I. ठीक है. सो एक पॉइंट लिया है उसकी एक्सिस पे, और वो पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस होल सोलेनॉइड वो हमने ढूंढा है. ठीक है. तो एक छोटा एलिमेंट पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सोलेनॉइड है. मतलब सोलेनॉइड में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल, कंटिन्यूस नॉर्थ साउथ पोल का एक अमेलगमेशन है सोलेनॉइड.
छोटे छोटे नॉर्थ साउथ पोल है उसके अंदर, बिकॉज एवरी टर्न बिहेव्स लाइक अ करंट कैरिंग लूप विच इज इन इटसेल्फ अ मैग्नेट। क्योंकि वो खुद एक मैग्नेट है तो हमें एक छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा, और वो छोटे एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये फॉर्मूला जो तुमने पहले यूज़ किया वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है ये। एक मिनट। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, कैन यू टेल मी यहाँ पे 4π² क्यों नहीं है? आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा लग रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² होता है ना? हाँ, तो वो πr² के साथ इसका मतलब कुछ कट हुआ है शायद। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस n dx? n into dx, n is the number of turns per unit length times dx is the thickness, मतलब वो थिकनेस में कितने टर्न्स आते हैं, n into dx, उतने थिकनेस में कितने टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्मॉल सेगमेंट dx into I r²। हाँ, तो रेडियस तो नहीं होगा एक्चुअली, ये होगा πr², क्योंकि एरिया होगा ये। सो दिस इज नथिंग बट NIA, NIA इफ यू रिमेंबर NIA है ना, NIA ही होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और वो पाई नीचे जो था वो कट गया आई थिंक, इसलिए सिर्फ r² बचा है यहाँ पे। यू कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली क्यों लिखा है। एनीवेज, तो नीचे आया 2 इंटू, अच्छा ये 2 कहाँ से आया, 4π होना चाहिए, कहाँ पे रहेगा 2? म्यू नॉट इंटू 2m। हाँ, तो 2m जो था ना, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, उसका 2, और ये नीचे वाला 4π का 2 कट गया है। सो यहाँ पे आएगा r² प्लस r माइनस एक्स द होल स्क्वायर रेस टू 3/2। कैन यू टेल मी ये क्या है? x² प्लस l² होना चाहिए। व्हाट इज x²? r² क्यों लिया है यहाँ पे? r is the radius, r minus x, that is distance from the point from the center of solenoid, minus x, that is distance of the that small element of the solenoid from the center, r minus x. This is little r minus x तो समझ में आया, लेकिन r² क्या है? अरे r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से, हम लोग सेंटर से ही लेते हैं ना बार मैग्नेट में, और x ये करंट एलिमेंट का डिस्टेंस, मतलब टर्न्स का, जो स्मॉल सेगमेंट लिया है वो तो ठीक है, दैट इज l², सॉरी x², जनरल टर्म्स में x² है ये, बट व्हाट इज r²? एग्जैक्टली, व्हाट इज r²? व्हाई they have taken r²? क्योंकि हमारे उसमें क्या था फॉर्मूला, l² था, क्या था, लेंथ, तो इसमें लेंथ क्या है, 2l है, तो l² होना चाहिए ना, या 2l² होना चाहिए, r² क्यों लिया? एनीवेज, नीचे देखते हैं, डायरेक्ट लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। इफ द डिस्टेंस, ये है क्या इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड O इज लार्ज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, स्मॉल r इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R एंड ऑल्सो x, सो यू जस्ट सिंप्लीफाई एवरीथिंग एज r³। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हुआ तो रेडियस ऑफ सोलेनॉइड और x, that is the distance of that small element on the solenoid turns from the center को हम लोग इग्नोर करके, हाँ सिर्फ r बचेगा, so 2r³। The magnitude of the net magnetic field intensity due to the solenoid can be calculated by integrating this equation. So इसको इंटीग्रेट करेंगे -l से +l। What is -l से +l?
बीच सोलेनॉइड के लेफ्ट से राइट तक, दोनों एंड तक अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ अंदर dx बचेगा इंटीग्रेशन के लिए, और dx का इंटीग्रेशन x है, तो अगर इसको लिमिट्स डाल दोगे तो 2l आ जाएगा। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा, ये 4 पाई ये क्रिएट किया गया है, नहीं था इसमें, टू गेट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो 4 पाई नीचे डाल दिया, तो इसके लिए ऊपर भी हमें 4 पाई डालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 4 पाई था ही नहीं ना। अच्छा, यहाँ पे 2 था एक, तो हमने 2 पाई डाला है, तो ऊपर भी 2 पाई डालना पड़ेगा। सी देर इज ऑलरेडी 1 2l, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू एन डाल देंगे। सो 2n इंटू 2l इंटू पाई आई आर स्क्वेयर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। पाई भी डाला है ना, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को कांस्टेंट बनाने के लिए, और ये पूरा देखो क्या हो जाएगा, 2n इंटू 2l इंटू पाई आई आर स्क्वेयर हो जाएगा 2m, क्योंकि m होता है NIA। पाई आर स्क्वेयर a हो गया, i हो गया, n हो गया तुम्हारे पास, और सिर्फ एक 2 बचेगा। 2l तो लेंथ है, NIA और लेंथ कहाँ आ जाएगा NIA में? सोलेनॉइड देखो 2l ना, 2l तो था ही पहले से, वो इंटीग्रेशन से आया है। वो कहाँ से आया उसमें तो क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन है गया कहाँ पे वो। हाँ टू देखो 2n इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई इज NIA, लेकिन ये 2l कहाँ गया? नीचे सब कुछ ठीक है, वेर m इज द मैग्नेटिक, ओ ये देखो, वेर m इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। हम लोग क्या ले रहे थे, म्यू ले रहे थे ना, वो म्यू किसका मैग्नेटिक मोमेंट था? कॉइल का था। ये सोलेनॉइड है, कॉइल ओवर अ होल लेंथ, यू अंडरस्टैंड, मतलब सिर्फ एक को नहीं, हाँ तो कॉइल में एन टर्न्स हो सकते हैं, बट हियर द नहीं, बट वो फॉर्मूला भी सही है, म्यू इज इक्वल टू NI है। एक कॉइल में टर्न्स हो सकते हैं ना मल्टीपल, बट अगर वो टर्न्स साइड बाय साइड रखोगे तो सोलेनॉइड बन जाता है, यू अंडरस्टैंड। हाँ तो वो n, यस 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 यस, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ इंटू एरिया इंटू करंट। यस 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 यस, वो भी एक जस्टिफिकेशन है। So the expression for actual magnetic field of solenoid is as derived in equation 30. It's the same actually. पूरा derivation है, same चीज derive की है वो लोग ने, just like bar magnet, वही चीज से वही derive कर दिया। ठीक है, सो एक मिनट, कुछ तो हमें ऐड करना पड़ेगा वो नोट्स में, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट था। कोई बात नहीं, फिर भी लेट्स नॉट, है ना, हम लोग वो जो थियरी पार्ट है ना उसमें नहीं, थोड़ा स्किप मारेंगे। आई डोंट थिंक कि न्यूमेरिकल्स के साथ कोई छेड़छाड़ी करनी चाहिए अपने को, बिकॉज दैट्स वन थिंग वेयर विच यू कैन एनकाउंटर एनी वेयर इफ यू गो फॉर कॉम्पिटिटिव्स एंड ऑल, सो उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे चेंज। सो लेट्स जस्ट नोट दिस नाउ। कोई न्यूज़ नहीं अभी तक, बोला है रिवीजन के लिए, अभी तक विचार कर रहे हैं विचार करने दो उनको, अपन देख लेंगे उसको। क्या था? ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सबसे मेरे को यूनिक चीज़ जो लगा वो टॉर्क का, वो लोग ने जो फॉर्मूला बनाया था आई वाला, दैट वाज अमेजिंग, मतलब कहाँ से लेके आए वो लोग। आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। तो मैं एक चीज़ लिखना चाहूँगा इससे पहले,
at theta is equal to 0 degree, u is equal to 0, therefore सॉरी माइनस एम बी साइन थीटा, सही है ना? माइनस एम बी, माइनस एम बी, दैट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? सो देयरफॉर आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। ये हो गया। यहाँ पे आई क्या था? ओह सॉरी, नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते थे, इनर्शिया बोलते थे। फॉर एंगुलर क्वांटिटीज मोमेंट ऐड वर्ड ऐड होता है ना, सो दैट्स व्हाट। ऑफ बार मैग्नेट, और डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड माइनस एम बी साइन थीटा में एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, and B is the ठीक है। and what is this sign, what is this theta? small angle of displacement, angular displacement, ठीक है कि ये इसको पूरा हमने डिमिस्टिफाई कर दिया। अब क्या आगे? अब ये जो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर उसको हमने अल्फा बना के, अल्फा इज इक्वल, अल्फा का फॉर्मूला निकाला माइनस एम बी बाई आई साइन थीटा। हाँ शिफ्ट किया। सो वेयर d square theta by dt square is equal to alpha, and therefore alpha is equal to minus mb by I into sine theta. But for small values of theta, sine theta is equal to theta, therefore we can write it as alpha is equal to minus mb by I into theta, और माइनस एम बी को क्या लिया है? माइनस टाउ। नेक्स्ट में वही लिखा है ना, ट लग रहा है हिंदी का, ट ही लिख रहा है यार मेरे को, अभी ट ही दिखेगा ही, कभी भी मेरे को ट दिखेगा ही। माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा, सॉरी माइनस टाउ बाई आई इंटू थीटा, विच रिप्रेजेंट्स एन एस एच एम, है ना? सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एक्सप्रेशन से ये मेल खाता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा का फॉर्म है ये, वेयर ओमेगा इज माइनस एम बी, सॉरी रूट ऑफ एम बी बाई आई। क्या चैप्टर था ना ये, कितना ब्यूटीफुल चैप्टर था यार, रोटेशनल मैकेनिक्स, कितना अच्छा चैप्टर था यार। मुझे वो फिर से करना है, मतलब एकदम अच्छे से, क्या बोलते हैं, ऐसे ही एक नोट्स बना के प्रॉपर, यू नो लाइक रिवाइज, फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितना मजा आएगा। दीज आर लाइक अमेजिंग क्वांटिटीज। और दोनों यार, दोनों के दोनों इतने अच्छे चैप्टर हैं रोटेशनल। अब मैं जब कराऊंगा तो एक बार आओगे क्या तुम लोग? पॉसिबल होगा क्या?
आ सकते हो, मतलब आई वुड लाइक टू इनवाइट यू जस्ट टू हैव अ रिविजन ना। हाँ, जब मैं कराऊँगा बुलाऊँगा मैं तुमको। एनीवेज, तो क्या था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एम बी बाय आई। ठीक है, फॉर्म ऑफ एस एच एम। अच्छा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई, नहीं 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, therefore time period is equal to 2 pi into under root of I by mb, time period of those oscillations. सही है, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज देर आर सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस। यहाँ भी एक्चुअली पूरा लिखा होता ना तो बहुत मस्त होता है, बट एनी वेज वी हैव इट। सो मेरे को चाहिए कि तुम लोग ये सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई करो भी, बिकॉज वी हैव ऑल द फॉर्मूले रेडी। सो आई थिंक मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।